Hello everyone, this is Satyam and welcome to Prepare with Satyam YouTube channel. Friends, today we will learn present perfect continuous tense. So let's start. So we have to study present present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. So first of all, what we'll do? First of all, we will discuss structures of it. Structures. Right. So the structure of affirmative sentence. The structure of affirmative sentences. Affirmative sentence. The structure of affirmative sentence. So in affirmative sentence, subject, then we use has. If your subject is singular, means if your subject is singular means if your subject is he, she, it, and name or any singular subject, any singular subject, we use has. And if you have I, we, you, they, and any plural subject, we use have. So this is the concept. So you have to use subject, then has, as or have according to subject. Then we use been, then we use the continuous form of verb, and next things, and plus since or for, and plus the time will be here, time. So this is the structure of present perfect continuous. Now we'll discuss the structure of negative sentence. तो ये होता है स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का. सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस the ing form of verb. Next, since or for plus time. So this is the structure of negative sentence, and we will discuss the structure of interrogative sentence. Interrogative sentence. So let's discuss the structure of interrogative sentence. So first of all, we will discuss close-ended questions. So first of all, we have has or have, according to subject. Then we use subject, then we use been, then we use the continuous form of verb, the continuous form of verb, then we use object, then we use since or for plus time. So this is the structure of interrogative sentence. And the question mark in the end. If you want to make this sentence negative, then you have to use not, after the subject. I have told you. So has or have plus subject plus not plus been plus the continuous form of verb, plus, and you have to use since or for, and plus time and the question mark. Now we will discuss open-ended questions. So use question word, then we use question word plus
has or have plus has or have, right, plus subject plus been plus the continuous form of verb, okay, and since or for, and plus time is be there, okay, and the question mark in the end, okay. Now if you want to negative, so question word plus has or have plus subject, okay, plus not plus been plus the continuous form of verb, okay, okay, then you have since or for according to time, since or for, and then you will use time, okay, and the things will be more explained, and this is the question mark, okay, and this is the question mark, okay. So this is the structures of present perfect continuous tense, and let's see some examples, okay. So first of all, what we have to do, first we will discuss some example, okay, as he has been reading, he has been reading for 2 hours, for 2 hours, okay. So let's see, okay. So has talks about present time, has talks about present time, okay. Been talks about perfect process, and reading means continuous process, it represents continuous process, means this is present perfect continuous tense, So what means present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense denotes, okay, an action starts in future, an action starts in past, okay, and it continued for 2 hours, okay, and in 2 hours, okay, if someone is reading a book, okay, so I am reading here, reading a book, okay, if someone reading a book for 2 hours, means he started studying, okay, the book for 2 hours, he started reading the book for means in the past, and after 2 hours I think he had read some pages, okay, of that book, okay, and now he is still reading, okay, means this denotes some action is perfect, means some action is complete, and some action is going on, so present perfect tense denotes some action has been completed, and some action is going on, okay. So this represents present perfect continuous tense, okay, okay. I think you all have learned this concept, okay. Now let's see more. So this is the example, okay, and now we will discuss the use of for and since, okay. Now we will discuss the use of for and since, okay dear. So first of all, we discuss about for. When we use for, okay. So friends, you have to know that okay, carefully see, for, okay, for works as a preposition, okay. For works as a preposition, and for works as a conjunction, okay, means it works as preposition as well as it works as conjunction, okay. And see, and now here for in, okay, so let's see, for, okay, be used for when the time is given duration, okay, when we have time duration,
duration, when we have time duration, okay, time duration means, I want to say time duration means the action, okay, the action, how much time the action is going on, okay, means समय जो हमारा एक्शन था वो कितनी देर तक चला, okay, that is time duration, okay. So if we have time duration, then we use help for. If you say in this example for 2 hours, okay, means he has been reading a book for 2 hours, means for 2 hours. So it is a time duration when we use for, okay, then we use for, okay ठीक है, ओके दोस्तों। जब तो क्या हो, जब फॉर किसको डिनोट करें, टाइम ड्यूरेशन को डिनोट करें, तब इसका यूज हम, ओके, जब टाइम ड्यूरेशन हो तब हम क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, ओके। और आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर है इसका यूज, ओके, इसका यूज हम जितने भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें करते हैं, ठीक है, जितने भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं हम उसमें किसका यूज करते हैं, फॉर का, ठीक है, जितने भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें किसका यूज करते हैं, हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। जितने भी आपके परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें भी किसका यूज करते हैं, जितने भी आपके परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, उसमें भी हम फॉर का यूज करते हैं, ओके। और जितने आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, उसमें भी इसे यूज करते हैं फॉर का, ठीक है। तो जितने भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें, जितने परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें, और जितने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें हम फॉर का यूज करते हैं, ओके। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं सिंस की, अब बात करते हैं कि सिंस की, कि हम सिंस का यूज कहाँ करते हैं, कि हम सिंस का यूज कहाँ करते हैं, ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले समझ लीजिए सिंस क्या होता है। सिंस प्रीपोजिशन भी है, ओके, सिंस प्रीपोजिशन भी होता है, सिंस कंजक्शन भी होता है, ओके, सिंस कंजक्शन भी होता है, और सिंस माय डियर एडवर्ब भी होता है। सिंस क्या होता है, एडवर्ब भी होता है, सिंस क्या होता है, एडवर्ब भी होता है, ठीक है। अब देखिए सिंस का यूज हम इधर यहाँ करते हैं, ठीक है। अब दोस्त देखिए, अगर सिंस, अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, अगर आपको क्या दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है या स्टार्टिंग टाइम दिया गया है, क्या दिया गया है, या स्टार्टिंग टाइम दिया गया है, ठीक है, यानी शुरुआती समय दिया गया है, ठीक है, यानी बिगिनिंग टाइम दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, बिगिनिंग टाइम, ठीक है। तो इस केस में आप किसका यूज करते हो, सिंस का, ओके। जब आपका टाइम कैसा हो, स्टार्टिंग टाइम हो या पॉइंट ऑफ टाइम हो, ठीक है, या शुरुआती समय दिया गया हो, वही बात है, तो क्या आप लगाते हो, सिंस लगाते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों सिंस का यूज आप कहाँ करते हो, तो सिंस का यूज हम करते हैं जितने भी आपके परफेक्ट टेंस होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके परफेक्ट टेंस होते हैं हम उसमें किसका यूज करते हैं, सिंस का, ठीक है, उसमें किसका यूज करते हैं, सिंस का। और साथ ही, ठीक है, और साथ ही इसका यूज हम करते हैं किसके साथ, जितने भी आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, ओके, यानी इसका यूज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ भी करते हैं, भी करते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको ध्यान रखना है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप सिंस का यूज करते हो जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो। लेकिन जो आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी दोस्तों अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आगे पढ़ेंगे, ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके दोस्तों। तो इस टेंस में आपको पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्टार्टिंग टाइम के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का, किसका यूज करते हैं दोस्तों, फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है, इतनी बात कि दोस्तों अगर आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया हो तो आपका फॉर का यूज करना है, ठीक है। जितने भी आपके इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें, जितने भी आपके परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें, और जितने भी आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें आप फॉर का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एग्जांपल सीखेंगे, ओके। और सिंस का यूज़ कब करते हैं, जब आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो या स्टार्टिंग टाइम दिया गया हो या शुरुआत का समय दिया गया हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का। सिंस का यूज आप जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें कर सकते हो, और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें कर सकते हो, किसको छोड़कर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़कर, क्योंकि इसमें किसका यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, स्टार्टिंग टाइम के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल सीख लेते हैं, ओके। जैसे
जैसे दोस्तों हमने एग्जाम्पल लिखा ही, ओके, ही स्टडीज़ फॉर 10 आवर्स, ही स्टडीज़ फॉर 10 आवर्स डेली। ओके दोस्तों, तो हमने क्या यूज़ सीखा? तो दोस्तों हमने देखिए फॉर का यूज कहाँ किया, हमने फॉर का यूज इंडेफिनिट टेंस में किया। ओके, अगला एग्जांपल सीख लेते हैं। जैसे ही हैज, ओके, ही हैज प्लेड फॉर 4 आवर्स, तो आप देखोगे तो इसमें हमने फॉर का यूज कहाँ किया? परफेक्ट टेंस में किया। ठीक है, तो आप जितने भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें, और जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं उसमें आप करते हो। ठीक है, तो ये हो गया फॉर का यूज। अब दोस्तों आते हैं सिंस का यूज सीख लेते हैं। जैसे आई हैवेंट सीन हिम, ओके, आई हैवेंट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ। ठीक है, तो ये नोट कर रहा है आपको पॉइंट ऑफ टाइम को, क्या नोट कर रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम को। तो हमने क्या यूज किया? सिंस का यूज किया, और हम क्या यूज किया? परफेक्ट टेंस यूज किया। ठीक है, जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो दोस्तों क्या है? तो ये दोस्तों मॉर्निंग क्या है? एक सिंस मॉर्निंग यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, इसलिए हमने क्या यूज किया? सिंस का यूज किया। और इसका यूज़ हमने कहाँ किया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने इसका यूज किया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने इसका यूज किया। ठीक है दोस्त, यहाँ तक बात आई होप को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों आगे ध्यान रखना। ओके, अब आके दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है? दोस्तों सिंस अभी आपने सीखा कि सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं? जब पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जब पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है दोस्तों बिगिनिंग टाइम। ठीक है, बिगिनिंग टाइम यानी बिगिनिंग टाइम मतलब दोस्तों होता है स्टार्टिंग टाइम। ओके, जब किसकी चर्चा हो? स्टार्टिंग टाइम की चर्चा हो। ठीक है दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम या बिगिनिंग टाइम। इस केस में आप क्या यूज करते हो दोस्तों? इस केस में आप यूज करते हो सिंस। क्या यूज करते हो? सिंस। ठीक है, जैसे जितने भी आपके दोस्तों कैलेंडर से रिलेटेड दोस्तों बातें होती हैं। ठीक है, कैलेंडर से रिलेटेड यानी कैलेंडर दोस्तों रिलेटेड क्या होता है? डे होता है। ठीक है, कोई भी डे दोस्तों आ जाए, कोई भी दोस्तों, ठीक है, वीक, ओके, डे की बात होने लगे, ठीक दोस्तों, मंथ की बात होने लगे, ठीक है, ईयर की बात होने लगे, राइट, तो इन सब केसेस में आप किसका यूज़ करोगे? सिंस का यूज़ करोगे। ठीक है, कोई भी ओकेज़न है दोस्तों, कोई भी ओकेज़न है तो इसके केस में आप किसका यूज़ करोगे? सिंस का यूज़ करोगे। ठीक है, जितने भी स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, जितने भी स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं उसमें आप किसका यूज़ करोगे? सिंस का यूज़ करोगे। ठीक है, जितने भी पार्ट्स ऑफ अ डे यानी जितने भी डे के भाग होते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, ओके, सो इस केस में आप क्या यूज़ करोगे? सिंस। ओके, सो ये क्या होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ अ डे के बीच में भी आप क्या लगाते हो? सिंस का यूज करते हो। ओके, कोई भी पॉइंट ऑफ यानी कोई भी बिगिनिंग टाइम की सेंस हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या करता है, कोई भी सेंस देने लगता है बिगिनिंग टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी बिगिनिंग टाइम की क्या हो? सेंस हो। कोई भी बिगिनिंग टाइम की सेंस हो। ठीक है, सेंस हो रही है तो इस केस में भी आप किसका यूज करते हो? सिंस का ही यूज करते हो। इस केस में आप किसका यूज करते हो? सिंस का ही यूज करते हो। ठीक है, राइट दोस्तों, जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सिंस 7th ऑफ मई, ओके, सिंस 7th ऑफ मई, ओके, सिंस जुलाई, ओके, हमने यूज किया सिंस चाइल्डहुड। ये दोस्तों क्या है? स्टेज ऑफ लाइफ है। ओके, तो इन सब के केस में आप किसका यूज करोगे? सिंस का यूज करोगे। ओके, सो दोस्तों हमने यहाँ पर केवल क्या सीखी? बेसिक बात सीखी फॉर और सिंस के बारे में। किसके बारे में? फॉर और सिंस के बारे में। ठीक है, और दोस्तों हमने क्या किया? इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर सीखे और हमने सीखा कि फॉर और सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यानी जो भी अदर कॉन्सेप्ट्स हैं यानी आगे। ओके, अब मिलेंगे दोस्तों अपनी अगली क्लास में, आगे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसे सीखेंगे।